Hello, friends. A very warm welcome in another episode on Ansarkari with respect to economic options paper 2 questions. But again, I will be repeating the same thing that these are based on Indian economy, which are very important not just for future officers, but also for overall understanding and being an aware citizen, whatever you are doing. Such are the broad ideas examination promotes. So it is not a cynical, it is not a kind of a very grumpy and a mechanical exercise. It is all about, it is all about being challenging self. It is all about being self. It is all about taking oneself more forward. It is all about using the right resources. It is all about making right efforts. However, cost it is taking up, whether it is emotional, whether it is time wise, whether it is money wise, but one moves on. So in these ideas and with these values, we try to see what questions are these. In Indian economy, dichotomy of development emerged during the pre-reform period despite efforts of holistic development. Delineate the factor responsible for it. So it is very true, dichotomy of development emerged especially by 70s, because we could see, and by 80s we could see that this is not working. So that is why it is asking कि dichotomy जो development की थी, क्यों, factors क्या थे उसके लिए, जो dichotomy development की जो बनी, जो एक विभाजन बना, या जो डेवलपमेंट जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ, तो उसके क्या क्या कारण थे, फैक्टर्स क्या थे. लेट्स सी. So pre-reform period of 1991 saw growth of GDP on an average 3.1 with simultaneous rise in poverty, income inequality, and falling per capita income. That is dichotomous development as per NSO survey. Very true. RBI also, RBI reports have been speaking about it, and then at the same time, when we had surveys also, they will be also bringing such kind of ideas. And in fact, fragmented growth concentrated in public sector enterprises like railway, finance, and defense. Very true. It was a kind of a fragmented growth. So a large chunk was there with the PSUs, and the PSUs were not able to, it was not able to say, for example, when we say downward filtration theory, that was also not happening clearly. That is what was believed. Through railways, it was believed that it will bring prosperity, public sectors will bring prosperity, job लाएंगे, रूरल डेवलपमेंट होगा, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि टॉप डाउन जो टॉप टू बॉटम अप्रोच थी वो फेल हो गई. बॉटम टू टॉप नहीं आई है, वो तो फिर पंचायती राज के बाद से, और आप कह सकते हैं पोस्ट लिबरलाइजेशन में आएगा. Agriculture saw exponential growth only during Green Revolution 1996, but remained low productivity. 80% of farmers were wildland, 90% rainfed cultivated regions like Gujarat, Haryana, Andhra Pradesh. So pocket of prosperity. India became a nation which was not starving, but it was not a very smart, very planned growth, in the sense that per capita yield is very high, and per acre yield is very high, and at the same time we are experimenting. Like in today time also, India is facing the same kind of issue with respect to productivity per acre, and we are facing issue in terms of yields. We are facing issue in terms of that more production must be there and less population must be dependent on it. Import substitution gave limited opportunity to the growing economics of scale and competition. We could have given example also here. Top with regulatory challenges like license and inspector Raj, along with FERA and MRTPX, this resulted in a chronic capital and red tapeism. As a result, 70% of India still dependent on agriculture. Census data, inflation, and current account deficit widened, making poor more poorer. YKLA committee. Therefore, the doors to holistic development open only after 1991 structural reform. So, very true. You have rightly said. So, you could just throw light in this answer only. Fiscal deficit widened, our because economy was not opened, then we can't speak about capex, capital जो expenditure था वो कभी बहुत बढ़ा ही नहीं. Private sector participation always remained low, and private sector participation was in consumer industries, and the informal sector was very high. So taxation system was not helping it. Revenue generation was remaining up on the lower or the poor side. So ये आपने बिल्कुल ठीक ideas बोले. और इन आइडियाज़ में मैं कह सकता हूँ कि हमें काफ़ी सारे हमने एलिमेंट्स को कवर किया सिंपल तरीके से, लेकिन वही है, कोई कोट थोड़ा सा, कोई मैगजीन का नाम, कोई ऑथर का नाम, that will definitely make a difference. While Indian economic growth in recent years is services-led growth, Chinese model is manufacturing-led growth. Show the implications of the two models for long-term sustainable development. Indian and Chinese economy stood at level playing field in 1980s. Growth trajectory parted very sharply after the economic reforms. Services-led model, services contributed 40% to GDP in 1980, to which leapfrog to 60% in 21st century. Fast-forwarded urbanization in India, Bengaluru, Gurugram, Pune, driven by FDI input that was less development-oriented, thus unplanned. Okay, India became second home to big three, that is GAFA, which includes Google, Amazon, Facebook. External dependence increased.
Okay. Forex reserves accelerated to new heights of $700 billion in 2025, one of the highest in the world due to service export surplus. However, agriculture stagnated with the little progress in industries. Oxfam report poverty and inequality widened sharply. सो वेरी ट्रू। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का अपना अपना मॉडल है, तो कौन सा लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है, तो हमें अपने वाले मॉडल को थोड़ा ओरिएंट करना पड़ेगा। आपने क्रिटिकली तो अच्छा बताया कि देयर आर लिमिटेशंस टू द इंडियन सर्विस मॉडल, लेकिन आप बोलो कि इंडियन सर्विस मॉडल ही इसको एआई में लेके जाएगा या इंडियन सर्विस मॉडल ही बाद में सारी चीजों को अडेप्ट कर रहा है, आपको उस तरीके का डायरेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मॉडल को कंपेयर करने को बोल रहा है कि कौन सा मॉडल लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है। और हम तो डेमोक्रेसी भी है, हमने फोर्सफुल नहीं किया, हमारी जो कंडीशन है वो डिग्निफाइड है। हम एग्रीकल्चर के, हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हम ऐसा जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन भी हमारा तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से होता है। तो ये इसीलिए सस्टेनेबल है कि लोग उसको लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करेंगे। अब चाइना में हम ऐसा नहीं कह सकते कि चाइनीज पीपल विल ऑलवेज बी सपोर्टिंग इट, बिकॉज चाइनीज पीपल हैव बीन कोयर्स टू डू सो। पर कैपिटा इनकम तो बड़ी है उनकी हमसे बहुत ज्यादा। तो चाइना गेन मोनोपोली मैन्युफैक्चर स्टेटस, बैलेंस रीजनल ग्रोथ विद कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, पर कैपिटा इनकम आफ्टर यूएस आपने बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन बता दिया, कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ चाइना स्ट्रेंथन विद कंसिस्टेंट प्लानिंग इंडस्ट्रियल सिटीज, रेयर अर्थ, इकोनॉमिक वायबल, सारी बातें आपने बता दी। कम्युनिस्ट पॉलिटिकल फ्रेमवर्क टू प्लेड अ रोल। Therefore, China's growth depended on external consumer demand, but on daily consumables, catalyst growth, and India's service-led sector was limited to few countries' demand. तो आपने जो आंसर को आपने चाइना की तरफ, ठीक है भाई, आपको वो देना चाहिए कि उसको जो ड्यू वेटेज है, बेसिकली उसके वजन की वजह से उसको वेटेज मिलेगा। वो हमसे बहुत बड़ा है, वो हमसे बहुत ह्यूज है इकोनॉमिक टर्म्स में, लेकिन वो पूछ रहा है कि लॉन्ग टर्म में कौन सा सस्टेनेबल है। तो लॉन्ग टर्म में हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो सेल्फ मेड हुआ, हमें तो कोई यू नो हमने तो आर&डी में भी उतना स्पेंड नहीं कर पाए। हम आज भी डेवलप कंट्रीज के मुकाबले, चाइना के मुकाबले आर&डी में कुछ स्पेंड नहीं कर पाते, फिर भी हमारे आईटी सेक्टर ने, सर्विस सेक्टर ने अपनी जगह जगह बनाई। हमारे इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन ने कोशिश की, उसमें भी हमने कोशिश की कि हमें कटिंग एज मिले। तो फ्यूचर के अंदर आपको लेके आना है, जैसे अभी हम लेके आ रहे हैं भाई, हमारे यहाँ एआई आ रहा है, सेमीकंडक्टर आ गया, तो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इसमें के बाद अब एआई को, हम एआई में हम पीछे नहीं रहेंगे। एआई में ठीक है, चाइना इज ए ह्यूज, भाई वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के हिसाब से अगर आप बात करें तो आगे है, लेकिन फिर पॉइंट ये है कि हमारा मॉडल डिफरेंट है, उनका मॉडल डिफरेंट है। हमारे यहाँ जैसे अब आप बात करो अगर मैन्युफैक्चरिंग में भी, तो अगर आप बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो अल्ट्रा क्रिटिकल, अल्ट्रा जो पावर थर्मल प्लांट्स हैं, अल्ट्रा मॉडल यूएमपीपी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, आई बिलीव सो। तो चाइना में तो बहुत सारे हैं। वो ईवी देख लो, ईवी तो वहाँ लाखों हजार लाखों घूम रही है। हम तो 30 तक मॉडल बनने की बात कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल अलग रहेंगे। लेकिन आप हमारे यहाँ की जो जो हमारा ओरिएंटेशन है, जो हमारे यहाँ थाली का कॉन्सेप्ट है, जैसे एक बात बोल रहा हूँ मैं कि थालीनॉमिक्स की थाली मिल गई ना, ऐसा तो वर्ल्ड में कहीं नहीं होता। तो लॉपसाइडेड हमें, मतलब हमें, हमारा ये नहीं कह रहा कि हमारा बहुत आपने प्रशंसा कर देनी है, लेकिन आपने चाइना को अगर बताया कि भाई ठीक है, चाइना का आपने अच्छा बताया, लेकिन हमारे तो एसईजेड भी बहुत छोटे छोटे हैं। चाइना का तो एक ही एसईजेड एक शहर के जितना बड़ा होता है। तो वो वाली बात है। तो दो चार इसमें थोड़ा सा हम इसको अलग से देखेंगे कि इस पे हम अलग से स्टडी करके हम इसको और ज्यादा पॉलिश कर सकते हैं। पर वैसे सही है। एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इन इंडिया in the post-reform period has moved in favor of contractual, casual and self-employment. How public sector employment deceleration would impact the future of labor market in India? Elaborate. तो अब आप पहले तो ये बताइए कि इंडिया बीइंग ए मिक्स्ड इकोनॉमी कैटेगराइज ऑफ 60% सेक्टर जॉब्स, लेस शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर एज पर आईएलओ, कंपोजिशन ऑफ जॉब्स इज वे हायर इन इनफॉर्मल सेक्टर। बिल्कुल, पब्लिक सेक्टर, अच्छा आपने अभी से ही बता दिया, इफ पब्लिक सेक्टर डिसेलरेट द चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ हैज इमर्ज्ड एनएसओ वेयर एप्लीकेंट्स आउटनंबर द ट्रेन कैपेसिटी फॉर ए कॉम्पिटिटिव। अब ये देखिए, ये हमने एक ओरिएंटेशन लिया। अब लेकिन मैं यहीं से बोल सकता हूँ इस आंसर में, आप अगर ये वाला एंगल लेते, क्योंकि वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर में जब कम हो जाएगा तो क्या होगा। और हमारे यहाँ तो कैजुअल हो गया है, कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये तीन वर्ड उसने यूज। तो आप कहते हैं कि जो पोस्ट लिबरलाइजेशन है, उसके बाद से जो एम्प्लॉयमेंट का जो नेचर और एम्प्लॉयमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप अंडर को चेंज जाएगा, क्योंकि द इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो चेंजिंग। जब इंडिया एक लोअर इनकम कंट्री से मिडिल इनकम कंट्री की तरफ बढ़ेगा, तो नेचर ऑफ द जॉब विल ऑल्सो फॉर चेंज फॉर मेजोरिटी। इसीलिए हमारे यहाँ स्टार्टअप कल्चर से लेकर उसको कितना पुश किया गया है, गिग इकोनॉमी हमारे यहाँ कितनी तेजी से राइज हुई है,
हाँ जी। उसके बाद सारे मजबूरी में काम नहीं कर रहे, बहुत सारों को तो मौका मिला, पहले वो भी नहीं कर रहे थे। इट इज द क्वेश्चन इज दैट व्हाट स्किल आर यू हैविंग। हम्म। यूथ के पास स्किल भी तो होना चाहिए। हाँ जी। अब यूथ स्किल भी नहीं है और अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट, जैसे आपने बोला था चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ हैज इमर्ज्ड, लेकिन फिर आप यहाँ पे ये भी बता दो कि सरकार ने साथ साथ में यहाँ पे फिर इंटर्नशिप भी रख दी। हम्म। सरकार रास्ता भी दिखाना चाह रही है। जी। सरकार किसान को मजबूर नहीं है, जैसे कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बन गई है अभी, जैसे अभी सरकार खेती में भी चाह रही है ना कि टैलेंटेड आदमी जाए। हाँ जी। ह्यूमैनिटी 1000:1 स्टूडेंट जॉब रेशियो, बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन ये बताने की जगह है कि भाई एमबीए चाय वाला ये ठीक है, ये मतलब ये दूसरे एंगल में चले गए हम। अब ये बताने की जगह है, हमें ये बताना है कि भाई जो है अनएम्प्लॉयड होने के बाद भी, अनएम्प्लॉयड होने का एक माइंडसेट ये है कि हमें नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। ये भी तो कीड़ा है। हाँ जी। कीड़ा जाता ही नहीं है माइंडसेट कि हम्म। वी कैन वी कैन बी रिलैक्स्ड एंड यू कैन डू ऑन योर ओन समथिंग बेटर। You are not ready to chase your dream, but you want to be a multitasking staff. घर में है फॉर्च्यूनर लेकिन हो एमटीएस। अब हम्म। बात समझ रहे हो? तो ये आपको ये वाला एंगल तो लाना पड़ेगा ना, ये लिखना नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि कैसे अलग अलग फैक्टर उसके लिए करते हैं। पीएम इंटर्नशिप स्कीम आपने बता दी, एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिवाइज तो बता दिया, बहुत अच्छा बताया, स्किल मिशन बता दी। तो लेकिन जो पहले हम बताना जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक फील आए पूरे आंसर की, तो वो एक जुड़ के आ जाए तो आई थिंक फेयर इनफ, क्योंकि आपको दोनों बातों को जस्टिस करना है, हम्म। ये वाली बात। चलिए आगे। स्किल डेवलपमेंट thereby raising labor productivity like China would be the only panacea for long term growth in Indian economy discuss। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये क्या है कि अब ये एक ऐसी चीज बोल दी, ना तो आप चाइना की पूरी प्रशंसा कर सकते और ना आप इंडिया की पूरी प्रशंसा कर सकते। तो आपको चाइना के कुछ गुण लेने हैं, आपको इंडिया के स्किल डेवलपमेंट में उनको देना है, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो बोल के भी लिप सर्विस की और कुछ नहीं कर पाया, उसको थोड़ा क्रिटिकली लिखना है, और फिर आपको फ्यूचर ग्रोथ बतानी है। ये सारा डेटा के साथ अगर हो जाए साथ साथ में, तो आई थिंक वी आर 5+। इफ 10 मार्कर एंड वी आर 7.5 और 8 भी आ जाएगा, इफ वी इज 15 मार्कर लाने के लिए जान लगानी पड़ेगी। तो स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर फोकसिंग ऑन इट, वी आर नॉट डूइंग ए लिप सर्विस। हम वर्ल्ड के बड़े बड़े मॉडल्स लेके आ रहे हैं, इवन इन एजुकेशन ऑल्सो, जैसे मूक्स लेके आए हैं, ठीक है, MOOCs, हम्म। मास ओपन लर्निंग का है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो है वोकेशनल कोर्सेज का बहुत वो है। लेकिन चाइना चाइना ने आरएनडी में इतना स्पेंड किया है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो दे आर एबल टू थिंक बेटर देन अस। वी आर ऑल्सो वी ऑल्सो ट्राई टू मूव इन दैट डायरेक्शन, बट विद इन ए डिफरेंट वे। हमारा ओरिएंटेशन ही डिफरेंट है। तो ये हम्म। फिनिशिया से आप बिल्कुल इससे एग्री करो कि हाँ, फिनिशिया यही है, इसका शॉर्टकट पर लेकिन ये बोल रहे नहीं। हैं कि ओनली पनेशिया है, तो ये खाली ये हाँ दो मतलब फैक्टर्स ओनली का तो मतलब है, नहीं। ओनली का मतलब है यहाँ पर, ओनली का मतलब है कि स्किल डेवलपमेंट से आप लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे चाइना की तरह, तो ही हम लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर पाएंगे। तो आप ये नहीं कह रहा कि आप जो है मतलब कि स्किल के बिना या मतलब किसी और सेक्टर में आप ग्रो नहीं कर सकते। जब हाँ। बात स्किल डेवलपमेंट की आती है, तो खाली, लेकिन सर ये तो खाली स्किल डेवलपमेंट बोल रहा है, मतलब ये एक फैक्टर हो गया, इसके अलावा भी तो और जो फैक्टर्स हैं उनका आप हो कहीं गया। ना कहीं थोड़ा सा लिख सकते हो ये, हम्म। लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट के अलावा भी फैक्टर है, बिल्कुल आपने ठीक बोला। आप ये लिख सकते हो, पहले तो आप इसी पे बात करोगे, फिर आप कहोगे लेकिन स्किल डेवलपमेंट के अलावा लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी। लेबर लॉस है, उसके बाद आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का चेंज हो गया आपका, फिर उसके बाद आप ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स अगर कर रहे हो, अगर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की बात करें, अगर आप नॉलेज इंटेंसिव सेक्टर्स की बात करें, तो दूसरा आइडिया आ जाता है। तो वो आप थोड़ा सा बाद में बता सकते हैं। तो लेट्स रीड एंड सी दिस। स्किल डेवलपमेंट एंड लेबर प्रोडक्टिविटी एज ए मेजर्ड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो, वेरी ट्रू, एंड पर कैपिटा इनकम आर क्रूशियल टू अनलॉक द पोटेंशियल जीडीपी, वेरी ट्रू, ठीक है। द ओनली पेनिशिया विल बी डिसाइडेड बाय सेक्टोरल कंपोजिशन विद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड जीडीपी। एग्रीकल्चर, अच्छा आपने क्वेश्चन का टोन चेंज किया। हम्म। एग्रीकल्चर शेयर अप टू 25% विद इंडस्ट्रियल शेयर ऑल्सो 25%। तो इसमें भी स्किल की जरूरत तो है ही। एग्रीकल्चर अगर आप इसी को करना तो आप इसको स्किल बना देते, लेबर प्रोडक्टिविटी को इससे जोड़ देते। सोशल सेक्टर, कैपेक्स, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, along with upliftment of backward sector section through subsidy and affirmative actions like reservation, India has created its own path growth and following China is not the optimum way। ये एक बहुत ही आपने अलग तरीके से इस आंसर को डील किया है, तो इट्स अ वेरी गुड लर्निंग एंड एन एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस। Raising R&D through 1 lakh on under R&D intensive scheme incentive scheme, digital public infrastructure expansion has been remarkable in the last decade,
Reforming MG-NREGA portion and PDS to ensure precision delivery of benefit. Therefore, skill and labor productivity is just one side of the coin, which is necessarily not sufficient for the long-term sustainable growth of India. तो मैं ये कहना चाहूंगा इस आंसर को जिस तरीके से आपने टैकल किया, तो वी गिव ये एग्जामिनर के हाथ में है कि वो इसको एक्सेप्ट करेंगे या कैसे इसको देखेंगे। लेकिन अगर हम इसको दोबारा से अगर वही जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको इसको स्किल डेवलपमेंट पे ही पहले चर्चा करनी है, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसके फैक्टर्स को आपको लेके आना है। और कहीं ना कहीं अगर 250 वर्ड्स का है, तो फिर आप कहीं ना कहीं एक पैरा में ये बताओ कि मतलब इफ सी फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव, ये स्किल डेवलपमेंट जो है लेबर प्रोडक्टिविटी का सिर्फ एक पार्ट है, और जी। वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में इंडिया को ऐसे सपोर्ट करेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने आंसर को हम्म। ट्विस्ट कर दिया। तो बात तो सही है आपने, लेकिन वो एग्जामिनर के हाथ में है कि वेदर ही इज विलिंग और शी इज विलिंग टू गिव द बेनिफिट ऑफ हम्म। डाउट कि चल भाई ले ले। तो मेरे ख्याल से मुश्किल है, वो ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज इट इज, आई एम नॉट सेइंग द वे व्हाट वी हैव डन इज इजी, but the point is that he wants to test on some other aspect. He or she wants to test you on the aspect that skill development and thereby raising revenue, like China would be the only panacea और discuss बोल रहा है वो। जी। अगर वो critically examine बोलता, अगर हम्म। वो critically evaluate बोलता, अगर वो बोलता कि तब ये सब कर सकते थे हम। लेकिन वो सिर्फ डिस्कस बोलता है। डिस्कस यानी कि आपको सिर्फ चर्चा करनी है। अब मैं आपको बोलूं चर्चा कीजिए दिल्ली में कितनी बारिश हो रही है, आप बोलो कि यार दिसंबर में तो बारिश होती नहीं है, वो तो फिर साउथ वेस्ट मानसून तो चला जाता है। हम्म। और मैं तो पूछ रहा था भाई दिल्ली में बारिश कितनी होती है, हाँ आप जी। चर्चा कर रहे हो दिसंबर, आप चर्चा कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी फिर ऐसे। हम्म। तो बेस वही रखनी है। So it's a हाँ। good learning for you. So not to deviate from the how not to deviate from the answer is one of the learnings from here. So you can just summarize quickly. तो मतलब उसको डायरेक्टली टैकल करना है, इतना ज्यादा दिमाग लगा के उसको घुमा के नहीं लिखना है। नहीं, खुद के लिए हाँ, डिफिकल्ट भी होता है वो। डोंट क्वेश्चन द क्वेश्चनर। जी। हम्म, ये सब और मेजर। कोई पॉइंट्स जो आप शेयर करेंगे? बाकी सर जो इंडियन सर्विस मॉडल का था, जो कि इंडियन सर्विस लेड ग्रोथ है, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ है, तो उसमें भी जैसे क्लियरली नहीं निकल के आया कि इंडिया के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए, डायरेक्टली वो ही दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा वहां पे हम्म मेरे को लगा। भैया आपको आइडियलिस्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा हाँ। आइडियलिस्ट होना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हाँ जी। कोई नहीं जानता ना कि रशिया यूक्रेन वॉर और 10 साल चलेगा, हम्म। सिनेरियो चेंज कर देगा। हाँ जी। इंडिया बोल रहा है अभी पीएलआई स्कीम लेके आ गया है, इंडिया डिफेंस इंडिजनाइजेशन कर रहा है। हम्म। अब हाँ। जब एआई आ जाएगा तो कौन कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए वैसी जरूरी रहेगी चीजें, हम्म। लोगों की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप क्या करोगे, बोलो, अब चीजें बदल रही हैं, हाँ जी। करियर्स